আলোচনা কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই অসমৰ যি বাংলাদেশী বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া যি বাংলাদেশী বিৰোধী অসমৰ অভিযান সেই অভিযান সম্পূৰ্ণ আইন বিৰোধী বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম চৰকাৰে আইন শৃংখলা নামানি সেই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিদেশী চিনাক্ত কৰি বিতৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আছে সেই আইন অসম চৰকাৰে উলংঘা কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে উচ্ছেদৰ মাজতে বাংলাদেশী বিতৰণক লৈ হৰব হৈ পৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আজি আমসুৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল আমসুৰ সেমিনাৰত উপস্থিত আছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৰাকী আৰু তাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অসম চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ অসমৰ বাংলাদেশী বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আইন বিৰোধী এই মন্তব্য কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই উচ্ছেদ আৰু বাংলাদেশী বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বৃহৎ মন্তব্য সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ বিদেশীৰ নামত লোকসকলক আটক কৰা হৈছে অসমত বিদেশীৰ নামত বহু লোকক আটক কৰা হৈছে বুলি কৈছে ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ বিতৰণ কৰা হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াক আইন বিৰোধী বুলি মন্তব্য এয়া সম্পূৰ্ণ আইন বিৰোধী এই মন্তব্য কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ আইন বিৰোধী প্ৰক্ৰিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণৰ এই মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই মন্তব্য কৰিছে যে সন্দেহৰ ভিত্তিত কোনো লোকক বাংলাদেশী বুলি আটক কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৰাকীয়ে অসমৰ বাংলাদেশী বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াক আইন বিৰোধী বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে উচ্ছেদ আৰু বাংলাদেশী বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ মন্তব্য সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ আজি আমসুৰ বৈঠক আছিল দিল্লীত আমসুৱে এক সেমিনাৰৰ আয়োজন কৰিছিল য'ত শক্তিশালী সংগঠনৰ সৈতে মিলিত হৈছিল আমসু অসমৰ উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ আমসুৱে বৃহৎ পদক্ষেপ লৈছিল সেই সেমিনাৰতে উপস্থিত আছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৰাকী আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৰাকীয়ে সেমিনাৰৰ পৰা ওলাই আহি মন্তব্য কৰিছে অসম প্ৰসংগত অসম চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে আমসুৱে যেহেতু দিল্লীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশজুৰি উচ্ছেদ যদি অসমত বন্ধ নকৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল আমসুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰৰ এই হুংকাৰ আছিল যদি চৰকাৰে উচ্ছেদ বন্ধ নকৰে তেতিয়া হলে দেশৰ শক্তিশালী মুছলমান সংগঠনৰ পৰা সহায় বিচাৰিব সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কৰিব উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু তাক লৈ আজি এক আলোচনাত মিলিত হৈছিল আজি দিল্লীত আমসুৱে আৰু সেই আলোচনাত শক্তিশালী সংগঠনৰ পৰা আমসুৱে সহায় বিচাৰিছে লগতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপস্থিত আছিল অসমৰ উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ সৈতে সেমিনাৰত আলোচনা কৰিছে আমসুৱে আৰু তাৰ পাছতে অসম চৰকাৰৰ যি বাংলাদেশী বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া অসমত বাংলাদেশী নামত বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু জেনেদৰে বিতৰণ কৰা হৈছে সেই নিয়মেৰে কোনো এখন দেশে কোনো আন এখন দেশৰ লোকক বিতৰণ কৰিব নোৱাৰে কোনো বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আছে বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন পালন কৰা নাই অসম চৰকাৰে মন্তব্য কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনক नाम पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है या उनको हिंदुस्तान से डिपोर्ट किया जा रहा है बिल्कुल गैर कानूनी है पहली बात तो आप सिर्फ ये कह के कि भाई हमारी राय में कोई जना फॉरेनर है उसको आप डिटेन नहीं कर सकते पहले भी बहुत सारे लोगों को डिटेन किया था जिनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया था उनकी अपील पेंडिंग है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 2 साल से ज़्यादा आप उनको डिटेन करके नहीं रख सकते उनको 2 साल के बाद छोड़ना पड़ेगा बेल पर छोड़ना पड़ेगा लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस आधार पर डिटेन किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं क्योंकि वहाँ की जो बिल्कुल कम्युनल सरकार है बिल्कुल कम्युनल चीफ मिनिस्टर है जो बिल्कुल कानून की परवाह नहीं करता और वो मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए डिटेन कर रहा है हिंदुस्तान से बाहर डिपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है डिपोर्टेशन के लिए एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है आप किसी जने को दूसरे देश में नहीं डिपोर्ट कर सकते जब तक कि वो देश एक्सेप्ट ना कर ले कि भाई ये हमारा सिटीज़न है इसको हम वापस ले रहे हैं बांग्लादेश ने तो एक्सेप्ट नहीं किया है लेकिन फिर भी लोगों को कहा जा रहा है बॉर्डर पर भेज के कि तुम लोग भाग कर उधर चले जाओ नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे
ये बिल्कुल गैर कानूनी और इनह्यूमन तरीका है किसी से भी डील करने का। सर लेकिन इसी मुख्यमंत्री को तो मेन स्ट्रीम मीडिया पोस्टर बॉय बना रही है। अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल सरकार के चंगुल में है ना, तो वो सरकार का प्रोपेगेंडा का काम करती है। सरकार तो यही चाहती है कि हर रोज़ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, नफ़रत बोई जाए, वही काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। इसीलिए उसको पोस्टर बॉय बनाया हुआ है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नफ़रत की बातें करता है। रोहिंग्या का जहाँ तक मामला है, देखिए रोहिंग्या जो हैं वो रेफ्यूजीज़ हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मान चुका है कि वो रेफ्यूजीज़ हैं, उनके पास रेफ्यूजी कार्ड्स भी हैं जो कि हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ ने इशू करे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने। लेकिन हिंदुस्तान ये कहता है कि भाई हमने तो रेफ्यूजी कानून या कन्वेंशन साइन नहीं किया, इसलिए हम इनको रिकग्नाइज़ करते हैं, इनको बाहर भेज सकते हैं। लेकिन आपने जेनोसाइड कन्वेंशन साइन किया है। इनके भी धारा 21 में संविधान में मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आप उन रेफ्यूजीज़ को इस तरह से नहीं भेज सकते कि जहाँ जिस देश में उनका नरसंहार हो रहा है, बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो न्यायपालिका का काम है सबको रोकना, न्यायपालिका वो काम नहीं कर रही है। इसी की शह पर ये सब बिल्कुल गैर कानूनी सरकारें इस तरह से बिहेव कर रही हैं। सर असम में जो मानते भी हैं, लेकिन उसके बाद में भी एक जेन्युइन इश्यूज वहाँ पे है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि जो लोग अभी भी आ रहे हैं, इनको भी वहाँ पे रहने के लिए ह्यूमन जो राइट्स है, इन लोगों का ह्यूमन राइट्स को नज़रअंदाज ना करें, या इन लोगों को भी नहीं, जो लोग अभी आ रहे हैं उन लोगों को तो रोकना चाहिए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक वेलबींग वगैरह के, वो अब हिंदुस्तान से बेहतर हैं। और जहां हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आज के हालात में मुझे नहीं लगता कि कोई बांग्लादेश से हिंदुस्तान आना चाहेगा। जो लोग यहाँ आए हुए हैं, हो सकता है कुछ आए हुए हों, लेकिन उनको भी हटाने का एक तरीका होता है कि उनकी पहले सारी अपील प्रोसेस वगैरह तय हो जाए, उसके बाद बांग्लादेश से आपका अग्रीमेंट हो जाए कि भाई वो बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं, उनको वापस लिया जाए, तब आप हटा सकते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, फॉरेनर के नाम पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है या उनको हिंदुस्तान से डिपोर्ट किया जा रहा है, बिल्कुल गैर कानूनी है। पहली बात तो आप सिर्फ ये कह के कि भाई हमारी राय में कोई जना फॉरेनर है, उसको आप डिटेन नहीं कर सकते। पहले भी बहुत सारे लोगों को डिटेन किया था जिनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया था, उनकी अपील पेंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 2 साल से ज़्यादा आप उनको डिटेन करके नहीं रख सकते, उनको 2 साल के बाद छोड़ना पड़ेगा, बेल पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस आधार पर डिटेन किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं, क्योंकि वहाँ की जो बिल्कुल कम्यूनल सरकार है, बिल्कुल कम्यूनल चीफ मिनिस्टर है, जो बिल्कुल कानून की परवाह नहीं करता, और वो मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए डिटेन कर रहा है, हिंदुस्तान से बाहर डिपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। डिपोर्टेशन के लिए एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। आप किसी जने को दूसरे देश में नहीं डिपोर्ट कर सकते जब तक कि वो देश एक्सेप्ट ना कर ले कि भाई ये हमारा सिटीज़न है, इसको हम वापस ले रहे हैं। बांग्लादेश ने तो एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोगों को कहा जा रहा है बॉर्डर पर भेज के कि हम लोग भागकर उधर चले जाओ, नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी और इनह्यूमन तरीका है किसी से भी डील करने का। सर लेकिन इसी मुख्यमंत्री को तो मेन स्ट्रीम मीडिया पोस्टर बॉय बना रही है। अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल सरकार के चंगुल में है ना, तो वो सरकार का प्रोपेगेंडा का काम करती है। सरकार तो यही चाहती है कि हर रोज़ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, नफ़रत बोई जाए, वही काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। इसीलिए उसको पोस्टर बॉय बनाया हुआ है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नफ़रत की बातें करता है। रोहिंग्या का जहाँ तक मामला है, देखिए रोहिंग्या जो हैं वो रेफ्यूजीज़ हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मान चुका है कि वो रेफ्यूजीज़ हैं, उनके पास रेफ्यूजी कार्ड्स भी हैं जो कि हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ ने इशू करे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने।
लेकिन हिंदुस्तान ये कहता है कि भाई हमने तो रेफ्यूजी कानून या कन्वेंशन साइन नहीं किया, इसलिए हम इनको रिकग्नाइज करते हैं, इनको बाहर भेज सकते हैं। लेकिन आपने जेनोसाइड कन्वेंशन साइन किया है, इनके भी धारा 21 में संविधान में मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आप उन रेफ्यूजीज़ को इस तरह से नहीं भेज सकते कि जहाँ जिस देश में उनका नरसंहार हो रहा है, बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो न्यायपालिका का काम है सबको रोकना, न्यायपालिका वो काम नहीं कर रही है। इसी की शह पर ये सब बिल्कुल गैर कानूनी सरकारें इस तरह से बिहेव कर रही हैं। सर, असम में जो मानते भी हैं, लेकिन उसके बाद में भी एक जेन्युइन इश्यूज वहाँ पे है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि जो लोग अभी भी आ रहे हैं, इनको भी वहाँ पे रहने के लिए ह्यूमन जो राइट्स है, इन लोगों का ह्यूमन राइट्स को नज़रअंदाज ना करें, या इन लोगों को भी नहीं, जो लोग अभी आ रहे हैं उन लोगों को तो रोकना चाहिए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक वेलबींग वगैरह के, वो अब हिंदुस्तान से बेहतर हैं। और जहां हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आज के हालात में मुझे नहीं लगता कि कोई